This is the journaling prompt which I use for morning journaling. So everyone, मैंने ये journaling prompt एक नोटबुक में लिख लिए हैं. Now I'm going to do journaling. So everyone, I'm done with my journaling, and guys, this activity works like a therapy. So I will tell you the reality. When I went to my home, so at that time I have learned about journaling. So I had started doing it. Like I was trying कि ये कैसा है, and guys, literally it is amazing because somewhere you are writing your thoughts on paper. So somewhere you are eliminating all the thoughts from your mind. So somewhere your mind is getting relaxed, or you can say relief. So somewhere this process is too good. So I had tried before also, and now I am thinking that I should continue it as long as possible. So I will suggest you can start from morning, and then you should also do at night also, because if you are going to do twice a day, like morning at night, so it is very beneficial. Because when you are going to start your day and you are going to do journaling, so it will motivate you, it will gives you energy to accomplish your day with full of productivity. And if you are going to do at night, so before sleeping, when you are going to write all your thoughts on a paper, so your mind will be empty and you will be relaxed somewhere. So I will highly recommend this. Before doing my journaling, उससे पहले ही मैंने एक क्लिप में आपको प्रॉम्प्ट शेयर किया है. सो यू कैन यूज़ दीज questions and you can start journaling. I will do journaling at night, so I will share you journaling prompt for night. So it will helpful for you, and it is not compulsory that you have to start from morning only. You can start from night journaling and then morning, or a vice versa, or you can start both of them. Because guys, this process is very relaxing. When you are going to write your thoughts on paper, guys, this will help you a lot in your mental health. I know nowadays it's not easy to be mentally fit. Somewhere this activity will helpful for you, so I will highly recommend to all of you, just try once. सो गाइस, टुडे इज़ 2 अक्टूबर और कल 3 अक्टूबर है. सो कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, एंड आई विल कीप फास्ट फॉर 9 days. सो आई हैव टू डू सम प्रिपरेशन, एंड फॉर दैट आई हैव टू क्लीन माई temple. I think you all are aware that in my room I have a small space for worship. So now I have to clean that area and prepare for tomorrow. So now I will start from cleaning that space. This is the space जो मुझे clean करना है. ये सब कुछ मुझे अच्छे से wash करना है और फिर इसको अच्छे से arrange करना है. So let's get started. पहले मैंने सारे स्टैचू को वर्शिप प्लेस से हटाया और एक एक करके उन सबको अच्छे से क्लीन किया. बिकॉज़ मैं जब भी पूजा करती हूँ तो मैं चंदन का तिलक लगाती हूँ, तो मैंने वो सब कुछ अच्छे से क्लीन किया. एक एक स्टैचू को बिल्कुल अच्छे से क्लीन किया. जितना भी सामान पूजा से रिलेटेड था वो सब मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है. और अब मुझे ये पूजा के जो बर्तन हैं इन्हें क्लीन करना है, और ये पूजा के कपड़े हैं जिन्हें मुझे वॉश करना है. सो पहले मैं ये बर्तन धोऊंगी, देन आई विल वॉश दीज क्लोथ्स. मैं सारे पूजा के बर्तन लेकर किचन में पहुंच गई और एक एक करके मैंने सारे बर्तन को अच्छे से क्लीन किया. एंड गाइस, आई जस्ट लव दिस प्रोसेस. ये जो मेरे मंदिर का स्पेस है, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है.
अब मैं यहाँ पर सारी स्टैचू और मंदिर का जितना भी सामान, पूजा का जितना भी सामान है, मैं एक एक करके सब अरेंज करने जा रही हूँ। बिकॉज़ अब ये सब भी क्लीन हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया है। सो नाउ आई विल डू अरेंजमेंट्स। वन बाय वन मैंने सारे स्टैचू को अच्छे से मंदिर में प्लेस करके उन्हें अच्छे से अरेंज कर दिया। तो एवरीवन, मेरा मंदिर अच्छे से क्लीन हो चुका है और उसके जितने भी बर्तन थे, पूजा से रिलेटेड जितने भी वर्शिप से रिलेटेड कपड़े थे, मैंने सब कुछ धो के सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है। और नाउ आई विल शेयर अ शॉपिंग हॉल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैं प्रेम नगर गई थी शॉपिंग करने। और वो शॉपिंग मैंने किस चीज़ के लिए की थी, नाउ आई विल शो यू। वेट अ मिनट। ये सब कुछ मैंने परचेज़ किया था फ्रॉम प्रेम नगर। सो बेसिकली मैं वहाँ इसीलिए गई थी बिकॉज मेरा फास्ट शुरू होने वाला है, उसी के रिगार्डिंग ही मैं शॉपिंग करने गई थी। तो मैं बहुत कुछ लेकर आई हूँ। सो उसमें फर्स्ट है मखाने, बिकॉज फास्ट में मखाने इज़ वेरी गुड। और फिर ये मैं रोस्टेड चने भी लेकर आई थी, बट आई विल नॉट ईट ड्यूरिंग फास्ट, बट ये मैं नॉर्मल डेज के लिए लेकर आई थी। एंड मैं ये किशमिश लेकर आई हूँ और ये आलमंड्स का पैकेट। और व्रत में खाने वाले ये साबूदाने के लड्डू। आपको तो पता ही होगा, जो लोग व्रत रखते हैं मोस्टली वो ये स्वीट्स खाते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी भी होता है। और इसके अलावा मैं लेकर आई थी पीनट्स, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं ड्यूरिंग फास्ट। सो इसको घी में फ्राई करके खाओ तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा फिलिंग होता है ड्यूरिंग फास्ट। सो गाइस, मेरा इतना सारा सामान मैं उस दिन शॉपिंग करके आई थी फ्रॉम प्रेम नगर। एंड दे आर वेरी अफोर्डेबल, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वेरी अफोर्डेबल। और जिस शॉप से मैंने ख़रीदा था वहाँ पे सब कुछ मुझे ईजिली मिल गया और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे। अब मैं क्या करूँगी कि मुझे ये जो पीनट्स हैं इनको फ्राई करना है और मखाने को भी फ्राई करना है, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें हैं विच आई विल ईट ड्यूरिंग माई फास्ट। सो मुझे इन सबको अच्छे से घी में फ्राई करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू माई किचन। ये रहे मेरे इंग्रेडिएंट जिनका मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो ये है मखाने, ये पीनट, ये एक ब्रांड है याओश जिसका मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ, मतलब सेंधा नमक जो व्रत में यूज़ होता है। तो मैं फ्राई करने के लिए इसका यूज़ करूँगी। और इस बॉक्स में मेरे पास देसी घी है। सो उसके यूज़ से मैं अपने मखाने और पीनट को फ्राई करूँगी। आई विल यूज़ दिस पिंक सॉल्ट फ्रॉम याओश। सो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। सो अगर आप बाय करना चाहो तो अमेज़ॉन से इसको ईज़िली बाय कर सकते हो। ये सेंधा नमक है जो व्रत में यूज़ होता है। सो नाउ आई विल स्टार्ट माई कुकिंग रिगार्डिंग व्रत। सो मैंने अपना जो फ्राई पैन है उसको अच्छे से वॉश कर लिया है, यू कैन सी। अब मैं इसका यूज़ करूँगी। मैंने इंडक्शन ऑन किया और उस पे फ्राई पैन रख के उसमें घी डाल के मैंने उसे गर्म करने के लिए छोड़ दिया। एंड देन मैंने उसमें अपने पीनट और मखाने को बहुत अच्छे से फ्राई किया एंड आई वाज एंजॉयिंग दिस प्रोसेस अ लॉट। ये मेरे पास लंच बॉक्स है जिन्हें मैंने पहले ही बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। सो नाउ आई विल कीप ऑल दिस स्वीट्स इन दिस लंच बॉक्स, बिकॉज ये बॉक्स में रहेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। सो एवरीवन, ये 2 लंच बॉक्स में मेरे सारे स्वीट्स आ चुके हैं, तो मैंने इसको इसमें अच्छे से स्टोर कर लिया है। नाउ आई विल ट्रांसफ़र किशमिश इन इट। कल बस का ओरिएंटेशन है
और हम स्टूडेंट्स को फॉर्मल्स पहन के जाने हैं, तो मैंने ये आउटफिट निकाला है। सो ये फॉर्मल पैंट है ब्लैक, और ये लाइट ग्रीन कलर की शर्ट है, और उसके ऊपर ये मैं गोल्डन हुप्स पहनूंगी। सो फुटवेयर के लिए आई विल वेयर दीज बेलीज, जो कि फॉर्मल्स के साथ बिल्कुल अप्रोप्रिएट हैं। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर बस ओरिएंटेशन। सो मैं अच्छे से रेडी होके एसओबी के ऑडिटोरियम पहुंच गई, जहां पर हमारा बस ओरिएंटेशन शुरू होने वाला था। एंड आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। Applause for all our new members. Okay, so as you know, this year we received close to 700 nominations, and our team interviewed close to 300 students. And after rigorous round of interaction and screening, here we are with our new 180 members, the chosen ones. Again, a big round of applause for all of you. One of the very interesting things that I keep seeing about this society is a significant social media presence, which is also one of the key attributes in today's times, where how do you brand yourself on social media, how do you track the analytics. At the end of the event, I have received gift hamper and joining certificate from bus, and I am feeling so grateful, so blessed for this opportunity. मेरा ऑर्डर आ चुका है, सो नाउ आई विल अनबॉक्स दिस। सो एवरीवन, मैंने ये स्विगी से ऑर्डर किया है, और जो आउटलेट है उसका नाम है लंच बॉक्स, और ये उनकी तरफ से मुझे एक क्यूट सा मैसेज भी आया है। सो दिस इज़ माय नवरात्रि स्पेशल थाली। दिस इज़ नवरात्रि स्पेशल थाली। सो लेट मी ओपन दिस वेरी केयरफुली। सो दिस इज़ साबूदाने की खिचड़ी, दिस इज़ आलू पैटी, एंड दिस इज़ कर्ड। सो मैंने ये ऑर्डर किया था फॉर माई व्रत। सो नाउ आई विल डू टेस्ट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम साबूदाने की खिचड़ी। गाइस, इट्स टू डिलीशियस। मैं आलू पैटी भी ट्राई करके देखती हूँ। Yummy! It's too tasty and delicious, guys. Highly recommended. Please try it. This is the night prompt which I'm going to use as my night journaling. आज नवरात्र का लास्ट डे है, आज नवरात्रि है, तो दुर्गा माँ को भोग लगाने के लिए मैंने ये मिल्क केक मंगवाया है कार्ला स्वीट्स से, जो कि प्रेम नगर में लोकेटेड है। सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आज नवरात्र का लास्ट डे है, मतलब आज नवमी है और आज दुर्गा माँ की पूजा होगी। मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, और फिर मैंने अपने रूम को बहुत अच्छे से क्लीन किया, बहुत अच्छे से शावर लिया, और मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ अपने एथनिक वेयर में। नाउ आई विल स्टार्ट माई वर्शिप। यू कैन सी मैंने सारे पूजा के बर्तन सब कुछ धो के रख दिए हैं। अब मैं पूजा स्टार्ट करने जा रही हूँ। पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने माता को भोग भी लगा दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई वर्शिप। जय हो दुर्गा चालीसा। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे तुखहरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। जय अम्बे गौरी मैया
जय श्यामा गौरी। सो एवरीवन, आज मेरा नवरात्र का फास्ट कंप्लीट होता है। मेरी पूजा बहुत अच्छे से हुई एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड। पिछले 8 दिन से मेरा ये फास्ट चल रहा था और आज जाकर 11th ऑफ अक्टूबर को मेरा ये फास्ट कंप्लीट हुआ है। सो पिछले 8 दिन से मैं निर्जल व्रत रख रही थी। इट मीन्स जैसे मैं सुबह पूजा करती थी और शाम को 6 बजे भी पूजा करती थी, तो मैं पूरा दिन 24 घंटे के लिए मेरा निर्जल फास्ट होता था। और जब मैं वापस कॉलेज से आती थी 6 बजे तो मैं पूजा करती थी और उस वक्त मैं जो भी व्रत से रिलेटेड मेरे पास खाने के लिए होता था, जैसे कि पीनट्स, मखाने, फ्रूट्स, वो मैं खा लेती थी एंड देन उसके बाद मैं पानी पी लेती थी। एंड फाइनली मेरा वो व्रत पूरा हो चुका है। आई एम सो हैप्पी, सो ब्लेस्ड कि मैंने ये व्रत बहुत अच्छे से किया एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे दुर्गा माँ की ब्लेसिंग मिली। आई एम सो ग्रेटफुल, सो ब्लेस्ड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।